ناظرین، بات تو افسوس کی ہے، لیکن ہمیشہ بات ہمارے ملک کے اندر جو ہوتی ہے مختلف ٹاک شوز کے اندر، وہ ہوتی ہے کسی نہ کسی بحران کے حوالے سے. بجلی کا بحران بہت بڑا ہے، لیکن سیٹھی صاحب اس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے آج چوہدری صاحب نے بھی، چوہدری شجاعت حسین صاحب نے بھی ایک فارمولا دیا ہے. اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ایک نیوز فلیش ہو رہی تھی جیو نیوز کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا. اس میں ایک رینٹل پاور پلانٹ کا جو کیس ہوا، سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اس کے اندر کچھ فارمر فیڈرل منسٹرز تھے، ان کا نام ای سی ایل پہ آیا ہے. اب دو کا تو مجھے سمجھ آتا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر رہے ہیں بجلی اور پانی کے، ان کا نام آ گیا ہے. لیاقت جوہری صاحب مشرف صاحب کے دور میں رہے. فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب، ان کا نام بھی رپورٹلی ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے ذہن میں آپ اس وقت کے حالات جانتے ہیں جب وہ فارمر فائنانس منسٹر تھے؟ جی ہاں، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ کچھ ایسے تھا کہ غالباً شوکت ترین صاحب اکتوبر 2008 میں فائنانس منسٹر بنے. اچھا، اوکے. اور رینٹل پاور پروجیکٹس کوئی 2700 میگا واٹس یا 2800 تھے یا 2600 سے اتنے تھے میگا واٹس کے ای سی سی نے اپروو کر چکے تھے اگست میں. ان سے پہلے ای سی سی نے انڈر نوید قمر اینڈ دا پرائم منسٹر، انہوں نے اگست میں ہی اتنے لمبے چوڑے رینٹل پاور پروجیکٹس اپروو کر دیے تھے ای سی سی نے. اوکے. جب شوکت ترین صاحب آئے تو اپیرنٹلی اس وقت کچھ اس پہ بات چیت ہوئی، اور شوکت ترین صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت یہ تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی غور فکر ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی میڈیا میں. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اچھا، انڈر پریشر فرام دا فائنانس منسٹر، دا نیو فائنانس منسٹر، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسے ہے ذرا آڈٹ کروا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی، ہاں. تو اس وقت انٹرنل آڈٹ چاہ رہے تھے، مگر میرا خیال ہے شوکت صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ انوالوڈ ہے، فورن کمپنیز، فورن، اور سارا یہ لون شوز بھی وہی تھے، پیسے ویسے بھی وہیں سے لینے تھے، اور وہ ان کی گارنٹیز وغیرہ بھی تھی. تو اے ڈی بی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی ریویو کر لے. اے ڈی بی نے ریویو کر کے اور اس میں سے 600-800 کے قریب اوکے رہے کر دیے، اور باقی انہوں نے کہا اس کو سکریپ کر دیا. تو 2000 سکریپ ہو گئے اور 800 کے میگا واٹس کے رہ گئے. ٹھیک ہے. تو اگر شوکت ترین نے کچھ کیا تو انہوں نے آپ کو 2800 سے بچایا، اور پرائم منسٹر صاحب کی انسسٹنس کے اوپر اور اے ڈی بی کی اپروول کے اوپر پھر 800 کی اپروول رہ گئی، جس میں سے 600-650 لگ گئے ان ڈیو کورس، باقی لگے نہیں، اور آج وہ روک دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ شوکت ترین صاحب کا نام آ گیا ہے. انہیں تو خراج تحسین دینا چاہیے کہ انہوں نے جو اس وقت روکنے کی کوشش کی تھی، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے، اور آج ان کا نام. اور اس میں مجھے اب ایک شرارت نظر آتی ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں آیا ہے. ججوں نے تو نہیں یہ کیا، ہو بھی سکتا ہے کہ بیکاز یہ تو دوسری طرف سے یہ ای سی ایل پہ آیا ہے نا، تو انٹیریئر منسٹری نے کہا ہوگا نا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کسی نے، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کو تو ڈیٹیلز نہیں پتا ہوں گے نا اس وقت کیا ہوا نہیں، وہ دیکھا کہ جی وہ تو کون سی فائنانس منسٹر، وہ جی شوکت ترین صاحب، وہ جی پادو جی نہ ہونا تھا بھی ہوتا، تاکہ سب کو کور کر لیا جائے. اب شوکت ترین از ناٹ دیئر ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، آئی ایم شیور ہی ول، بٹ جہاں تک میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. یہ ریزروز دا رائٹ، وہ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی سنا جائے گا، آپ شور اگر وہ جائیں گے تو. لیکن صاحب آگے چلتے ہیں. بجلی کا بحران، چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو پروپوزل دیا ہے، انہوں نے تو جو پروپوزل دیا ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی زبان میں، انہوں نے تو سیدھا کہتا ہے نا کہ یہ کر لیں تو شہروں میں تو ختم ہو جائے گی بالکل لوڈ شیڈنگ، اور دیہات میں صرف 1 گھنٹہ ہوگی. تو پہلے بتانا تو چاہیے نا ناظرین کو کہ چودھری صاحب نے کیا پروپوزل دی ہے. اب چودھری صاحب یہی کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بحران ہے، پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو وہ 5 ارب 10 ارب نکال کے کہیں سے دے دیتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں. 2 دن گزرتے ہیں 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، پھر چوتھے دن پھر 10 گھنٹے ہو جاتی ہے، اینڈ سو آن. تو کرائسس تو اس وقت وہی ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں جی سر، شارٹ ٹرم کرائسس. لانگ ٹرم تو ایک کرائسس ہے، اس کی اب آج ڈسکشن نہیں کریں گے. الیکشن ایئر ہے، بجلی آنی چاہیے، نہیں تو یہ اڑ جائیں گے سارے. تو وہ کیسے آئے؟ اب چودھری صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پروپوزل دی ہے. انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 3 مہینے کے بعد نیا بجٹ آ رہا ہے، اب 3 مہینے بھی تو گزارنے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، کیسے یہ چلے گا کام؟ انڈسٹری سفر کر رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے، ڈی اسٹیبلائزیشن کے بعد اور بھی اکانومی کا جو ستیہ ناش ہو جاتا. تو انہوں نے یہ پروپوزل دی ہے کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، جس کے تحت
पहली दफा हिस्टोरिकली प्रोविंसेस को 10% ज्यादा रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट ने दी। पहले फेडरल गवर्नमेंट देती थी उससे 10% ज्यादा फंड्स एलोकेट किए, और फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर है ऑफ रेवेन्यूज जो टैक्सेस से कलेक्ट करती वो श्रिंक कर गया। ये बहुत बड़ी एक कदम था डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। ये तो हो गया और ये पहला साल है। तो चौधरी साहब का ये कहना है कि अगले 3 महीने सारी प्रोविंसेस इन द नेशनल इंटरेस्ट ईसीसी में जाके बैठ जाएं और कहें कि अगले 3 महीने आप वो पुराने फॉर्मूले के तहत हमें हमारे पैसे दे दें, और 10% जो आपने एक्स्ट्रा देना था वो आप मत दें, और वो सारे का सारा आप बिजली के बहरान के खाते में डाल के ये बिजली का बहरान दूर करें। अच्छा, इस प्रपोजल के साथ किसी प्रोविंसेस को इतनी लंबी चौड़ी बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके साथ कोई 150 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाएगा। 150 अरब रुपया अगर आज अगले 3 महीने में 50 बिलियन अगर वो डाल दें हर महीने, प्रोविंसेस को जो जाना था वो रह के सबको दे दें, तो सारी ये जो लोड शेडिंग है ना, ये 60, 70, 80% कम हो जाएगी। तो चौधरी साहब का ये कहना है कि ये एक ऐसा वक्त है कि सबको सैक्रिफाइस करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, कुछ प्रोविंसेस शायद मान भी जाएं। सिंध हो सकता है ऑब्जेक्ट करे, बिकॉज सिंध इस वक्त वहाँ इतनी लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ इतनी गैस शॉर्टेज नहीं है, इसलिए वो हो सकता है कि नहीं हम नहीं देते। मगर ये वो वक्त है कि पंजाब ने सबसे बड़ी सैक्रिफाइस की थी कि अपना शेयर 54 से 50 या 53 से 52 या 52 से 50 पे ले आए थे। तो पंजाब ने भी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सैक्रिफाइस की थी। तो अब वक्त आ गया कि सिंध भी सैक्रिफाइस करे और प्रोविंसेस भी सैक्रिफाइस करें, ताकि सारा मुल्क में बिजली एक दफ़ा फिर सबको मिलनी शुरू हो जाए। तो ये तो चौधरी साहब की प्रपोजल है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त प्रपोजल है, इसके ऊपर गौर होना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एक सैक्रिफाइस है। क्राइसिस पूरे मुल्क का है और सारे मुल्क का क्राइसिस। दूसरी बात ये कि आज की खबर ये है कि कुछ मीटिंग्स हुई हैं प्रोविंसेस की फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसी मौजू के ऊपर, और उसमें एक और नई प्रपोजल भी आई है जो मैं आपको आगाह कर दूं कि वो प्रपोजल क्या है। और वो गालबन पंजाब की तरफ से बड़ी फोर्सफुली आर्ग्यू की गई है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और मैं समझता हूँ वो भी एक मुहिब्बुल वतनी का इजहार किया। उन्होंने ये कहा है, मेरी इतला के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा ख्याल है कि मेरी चिड़िया सही खबर लेके आई है। वो ये कि ये जो डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली वाली, जहां जो अगर 100 रुपए का बिल देते हैं तो 70 रुपए उनको मिलते हैं, 30 रुपए लोग चोरी कर लेते हैं या बिल नहीं देते। तो इनका ये कहना है प्रोविंसेस का, लेड बाय पंजाब, कि आप डिस्कोज जो है वो हमारे वाले कर दें प्रोविंसेस के, हम जाने और हमारा कस्टमर जाने। हम आपसे एक फ्लैट टैरिफ के ऊपर खरीदेंगे बिजली, हम अपना टैरिफ हर प्रोविंस में रखेंगे। हो सकता है सिंध में बिजली सस्ती हो, पंजाब में महंगी हो, और जो भी वो जो गैप है उसको हम प्लग करेंगे, चोरी को भी हम रोकेंगे और गैप को भी हम प्लग करेंगे। और ये आगे भी बात बढ़ सकती है कि जो आपने हमारे पैसे देने हैं, जो हमने देने हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से, आप एडजस्ट करो उसमें से। मतलब इसके बड़े फॉर्मूले बन सकते हैं, इसकी वेरिएशंस हो सकती है कि डिस्कोज को हैंड ओवर कर दिया जाए टू प्रोविंसेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बड़े लॉसेस हैं, और इसके साथ डिवोल्यूशन की भी बात हो जाएगी, और फिर प्रोविंसेस जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उनका एक काबू भी उसको कर लेंगे, और फिर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, रिकवरीज भी करनी पड़ेगी। इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि लोग नाराज हैं दरअसल फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज उनके हाथ में है, मगर गाली पड़ रही है पंजाब गवर्नमेंट को, कभी तुसी की कर दे पे। सो मतलब है कि इसके साथ जिम्मेदारी भी वहां आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी प्रपोजल है, इसको भी अगर उसके साथ मिला लिया जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मगर मुनीब, अगर टाइम है तो इसमें एक बात मैं और करना चाहूंगा। ब्रेक है तो फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जरूर सेठी साहब आपसे सुनेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, सेठी साहब की बात सुनेंगे, आपकी कॉल लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपकी कॉल्स लेने से पहले सेठी साहब एक बात कर रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेठी साहब आप ख़त्म कर लें। जी, अब वो बिजली की बात कर रहा था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अच्छी नीयत के बावजूद कैसे नुकसान हो जाता है। पिछले अगस्त हमारी अदलिया ने एक स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया कि ये जो सरचार्ज लगा था बिजली के बिल्स के ऊपर,
उसको उन्होंने कहा कि इसके ऊपर स्टे कर दिया, ये अब पे नहीं होगा जब तक इसका फैसला नहीं होगा। अभी हाल ही में उस स्टे को वकेट किया, मगर उस स्टे की वजह से कोई गालबन 110 अरब रुपए जो बिलों में उस सरचार्ज से मिलने थे वो नहीं मिले। 110 अरब रुपए अगस्त से लेके पिछले माह तक 110 अरब रुपए अब कहा जाता है कि वो कलेक्ट करें। अब वो अरियर्स में कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये स्टे ना होती तो ये 110 अरब नहीं तो चलो 100 अरब, चलो 90 अरब, ये कलेक्ट तो हो जाता। अगर कलेक्ट हो जाता तो ये इतना सख्त बहरान नहीं होना था। दूसरी बात, एक और स्टे की थी, वो स्टे की थी कि जो लोग 350 यूनिट से कम कंज्यूम करते हैं उनको भी सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत अच्छी नीयत थी कि गरीब लोग, वो इतना बोझ नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर। मगर उसके जो कॉन्सिक्वेंस जो नतीजे में ये हुआ कि 90 अरब रुपया अभी तक उस सरचार्ज में फंसा हुआ है। तो गालबन ये दो स्टेज की वजह से 200 अरब रुपया जो कि डिस्कोस को जाना था उस स्टेज की वजह से नहीं गया। एक स्टे वकेट हो गई है, मगर 110 अरब रुपया मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस किस्म की जब ये कदम उठाए जाते हैं तो सोचना चाहिए कि इतनी जल्दबाजी शायद मुनासिब नहीं होती, क्योंकि अगर 6, 7, 8 महीने के बाद उस स्टे को वकेट करना था, इस जैसे वकेट हुई है, तो फिर ये इतना नुकसान क्यों होना था। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ स्टेज दे दिए। अभी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था, क्योंकि मीडिया की बड़ी सख्त क्रिटिसिज्म थी कि ये जो डिस्कोस के चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं ये करप्ट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, इनके ऊपर दाग थे, बड़े इल्ज़ाम थे। तो हुकूमत ने मिलकर ये फैसला किया कि अच्छे हम अब एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए टेक्नोक्रेट्स, कॉम्पिटेंट लोग हम डिस्कोस के हेड्स पे लगाते हैं ताकि ये उसको मैनेज कर सके। ये पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कोई अच्छा फैसला किया था। हुआ ये कि वो जो लोग निकाले गए हैं उन्होंने जाके अदालतों से स्टेज ले लिए, और वो जो छांटी के बाद जो काम होना था वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि नए अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, क्योंकि वो पुराने लोगों ने जाके स्टे ले ली और वो भी स्टे ग्रांट हो गई, और ये पता नहीं जाके कब केस होगा। उतनी देर तक ये जो सारे डिस्कोस हैं या बेशतर डिस्कोस हैं जिनके चेयरमैन को या सीईओज को हटाया गया और नए लगाने थे, वो नए लग नहीं सके और पुरानों ने जाके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दी। तो ये भी इस किस्म की स्टेज भी जो होती हैं इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर जब हमारी अदालतें पेशकदमी करती हैं तो बड़े गौर से करनी चाहिए। हर फैसले के बहुत सीरियस संजीदा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक तरफ रेंटल पास को रोकना, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मगर दूसरी तरफ इस किस्म के जो फैसले हुए, आपको याद होगा वो शुगर के ऊपर भी। हम अब कॉल्स की तरफ चलते हैं। कॉलर हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं गुलाम मुर्तज़ा बोल रहा हूँ काड़े तो जी। जी 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 सिटी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में गरीब अवाम का निज़ाम ज़िंदगी किसके हाथ में है? नंबर 1 फौज, नंबर 2 जज साहबान, नंबर 3 मीडिया, नंबर 4 बिजनेसमैन, नंबर 5 मेंबर पार्लियामेंट। फौज का नाम इसलिए लिया है कि 35 साल सर फौज इक़्तिदार में रही। मीडिया छोटी बात को सीढ़ियों पर चढ़ा देती है लेकिन मुकम्मल बीच में छोड़ देती है। बिजनेसमैन चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में पूरी चीज़ें नहीं लाते। मेंबर पार्लियामेंट हर दफ़ा गरीब हथ कर जाते ने, आखिर गरीब जाएं तो जाएं कहाँ सर? मेहरबानी मुर्तज़ा साहब, मेहरबानी। यार बड़ा मुश्किल सवाल है, आपने तो आधा जवाब तो खुद ही दे दिया। मगर देखिए ये जो मुल्क में जो कुछ हुआ है ना, ये 2 हाथ से ताली नहीं बजी, ये 4-5 हाथों से ताली बजी है। मीडिया को बीच में से निकाल दें, क्योंकि मीडिया तो बेचारे 10 साल हुए उनको आए हुए, उससे पहले तो पट्टियां लगी हुई थी और कान भी बंद थे और मुंह भी बंद थे। बाकी 4 बिजनेसमैन टैक्सेस नहीं देते, रोते हैं, थोड़े लोग देते हैं, कुछ अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मगर ट्रेडर्स, छोटे बड़े बिजनेसमैन नहीं देते।
इस मुल्क में गालबन 30 लाख के करीब टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हैं, मगर उसमें से सिर्फ हाफ जैसे कहते हैं, आधे हैं जो टैक्स कुछ देते हैं, आधे देते ही नहीं। और 180 मिलियन की पॉपुलेशन में आप समझें कि 1.5 मिलियन टैक्सेस देते हैं, और वो भी क्या देते हैं, उसमें से सैलरी तबका जो है उनके तो सैलरीज सोर्स पे ही कट जाती हैं, तो वो तो छुपाने की वहाँ और चोरी करने की गुंजाइश ही नहीं होती। तो मतलब है कि ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत सीरियस। फौज आपने खुद ही कह दिया 35 साल रूल किया, क्या दिया? नहीं दिया तो है, कालाबाग डैम नहीं बना मगर और डैम्स बन गए, अयूब खान के ज़माने में कुछ डेवलपमेंट हुई एंड सो ऑन। मगर बात सही है, पहले से लेके अब तक मतलब है कि मेजर चंक ऑफ बजट जो है वो एक जंगजू रियासत क्रिएट करने के लिए फौज ने लिया, और अगर वो ना इतनी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स ना होते तो यकीनी तौर पे कुछ गुर्बत तो कम होती। तो जिम्मेदारी तो है बिल्कुल। हमें कितने F-16 चाहिए, कितने आइटम बम चाहिए? जब पेट ही भूखे हैं और हम नंगे होते जा रहे हैं तो इनके साथ क्या करेंगे हम? तो ये सोचने वाली बात है। तीसरी चीज़ आपने कहा जज, यार जज भी तो अभी आज़ाद हुए हैं, जजों को तो ज़रा छोड़ ही दो तो अच्छा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था और अब भी नहीं मिलता। ये सब ड्रामा है कि जी इंसाफ मिल रहा है। आज़ादी और इंसाफ दो अलग बातें हैं। आज़ादी के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये बातें आपने सही कही हैं। मेरी उम्मीद है कि हमारा हुक्मरान तबके जो हैं ये सोचेंगे, गौर करेंगे और गरीबों के लिए कुछ करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं कराची से, बुशरा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठी साहब की तवज्जो में बड़े अहम मामले की तरफ कराची के दिलवाना चाहती हूँ। ये जितने भी आजकल के हालात में जो खुरेजी हो रही है, इसमें बहुत सारे जख्मी सरकारी अस्पतालों में लाए जाते हैं, बल्कि बोरियों से भी लोग जिंदा निकल आए हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज तक किसी का पुलिस ने बयान रिकॉर्ड नहीं किया। मीडिया से बात हो गई है, लेकिन पुलिस के सामने किसी का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ कि हमें किसने अगवा किया था, किसने मारा था। बिकॉज इन सरकारी हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी में बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस ऑफिसर तैनात ही नहीं किए गए। ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि उनसे सामने आए ये बात कि उनको किसने मारा और क्या हुआ। इसके अलावा कराची के मज़ाफात में 6 बड़े सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जिनके इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर 12 बजे बंद कर दिए जाते हैं, और दूर दराज से जख्मियों को जब जिना, सिविल और अब्बासी लाया जाता है तो उनकी बेशतर तादाद रास्ते में खून बहने की वजह से मर जाती है। तो इन हालात के अंदर भी अगर गवर्नमेंट की इतनी गैर संजीदगी है लोगों की जान बचाने, बयान कलम बंद करने और पता लगाने पे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है भाई हमारा। बहन आप सही कह रही हैं, मगर सिर्फ मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ हुकूमत की नाअहली नहीं है या उनकी साजिश नहीं है, इसके अंदर सियासी जमातें भी मुलव्वस हैं। अब आप सोचिए वो पुलिस अफसर कौन सा है जो कि एक या दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई बयान जो है वो दर्ज करेगा। आपको पता है कितने पुलिस अफसर मारे गए हैं? कोई प्रोटेक्शन नहीं है पुलिस की। पुलिस को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑनेस्ट पुलिस अफसर हैं वो तो कराची में सर्व ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें हिफाजत नहीं दी जाती। वो अपना काम अगर करें तो या ये सियासी जमात या दूसरी सियासी जमात से उन्हें खतरा है। ये तो अब रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो चुका है कि कितने पुलिस अफसर जो कि अपनी लाइन ड्यूटी कर रहे थे उनको मार दिया गया दहशतगर्दों ने, क्योंकि वो इसी किस्म की जो बात आप तजवीज़ दे रहे हैं। इस मुल्क में जब तक पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं किया जाएगा सियासी जमातों से, उस वक्त तक यही होगा। और फिर पुलिस को हथियार भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, और फिर प्रोसिक्यूशन जो कि नहीं है इस मुल्क में। पकड़ के ले जाते हैं तो बयान लिख लेंगे तो क्या होगा? प्रोसिक्यूशन तो हो नहीं सकती। जज हजरात घबराते हैं, मीडिया घबराता है कि किसका नाम लिया जाए और किसका नाम ले लिया जाए। ये तो अब आम बात हो गई है। तो ये सिर्फ पुलिस की नाअहली नहीं है या इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये सारी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, हम सब इस हमाम में नंगे। फिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।